So let's try to connect. Okay. The Bible says, later she gave birth to his brother and named him Abel. Okay. This is about Eve. Okay. This is about Adam and Eve. Okay. It talks about their children. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके बाद उसने हाबिल को जन्म दिया और Okay. Yeah. And when they grew up, Abel became shepherd while Cain cultivated the ground. और जब वे बड़े हुए तब हाबिल चरवाहा बना और केन खेतों में काम करने Okay. लगा। Abel became shepherd और जो हाबिल है वो चरवाहा बना and Cain cultivated the ground. और केन भूमि में खेती करने लगा। Okay. When it was time for the harvest, और जब हार्वेस्ट का टाइम आ गया, the Bible says Cain presented some of his crops as gift to the Lord. और वचन में ऐसा लिखा है कि केन ने उसमें से कुछ उपज को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift. और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में कई एक पैलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। Okay. The Lord accepted Abel and his gift. और तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। Okay. But he did not accept Cain and his gift. परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। And this made Cain very angry. और इसके वजह से केन जो है वो अति क्रोधित होता है। And the Bible says he looked dejected. और वचन में ऐसा लिखा है कि वो बहुत ही उदास हो जाता है। We've surpassed the level of Cain, okay? हम कैन की स्तर से भी आगे चले गए। You know, Come on. we sometimes we're very angry, but on the face we try to smile. कई बार हम बहुत ही क्रोधित रहते हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाते हैं। The wider the smile, more anger. जितना ज्यादा स्माइल दिखता है उतना ज्यादा क्रोध होता है अंदर। Okay? Because we've now, Cain couldn't do all those things. क्योंकि केन ये सारी चीजें नहीं कर सकता। Because by then there were not enough people on the earth. क्योंकि तब तक इतने लोग नहीं थे पृथ्वी पे। So he didn't understand how to mask. तो वो समझ नहीं पाया कि बहरूपिया कैसे हो। So what he was within, तो वो जो अंदर था that's what he was on the वो outside. बाहर भी वैसे ही था। Okay? That is one of the reasons why he was still able to hear God. क्योंकि ये एक कारण है कि वो तब भी परमेश्वर को सुन पा रहा था। Because he was angry and that was there on his face. क्योंकि वो क्रोधित था और वो उसके चेहरे पे भी था। He was not running around the bush. और वो इधर उधर भटक नहीं रहा। He was not playing around. और वो यहाँ वहाँ। He's like, I'm angry, है ऐसा ही है. So God didn't have to use, sometimes God didn't have to use spiritual senses. God just saw him and God is like, hey, what's wrong with you? परमेश्वर को यहाँ पर कोई आत्मिक सेंस यूज करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने बस उसे देखा और परमेश्वर ने कहा अरे क्या हुआ तुझे? Sometimes we think when God speaks, it is only going to be about spiritual things. कई बार हमें लगता है कि यदि परमेश्वर बात करेंगे तो वो सिर्फ आत्मिक चीजों के बारे में ही होगा। But Jesus said, brood of vipers. That's not spiritual. He's actually telling them, you guys are brood of vipers. और जब परमेश्वर यीशु ने कहा कि तुम सांप के बच्चे हो। He also tells the Pharisees, you are whitewashed tombs. और उसने फरीसियों से भी कहा कि तुम व्हाइट वॉश टूम हो। Why is it? Because you all are wearing white. क्योंकि तुमने सब सफेद पहना हुआ है। And you're walking as if you're one of the angels. और तुम ऐसे चलते हो जैसे कि तुम एक स्वर्गदूत में से And हो। you're considering yourself very holy. और तुम अपने आप को बहुत पवित्र समझते हो। The Bible is so close to you, it will directly go inside. और पवित्र शास्त्र इतना करीब है कि सीधा अंदर चला जाएगा। You don't want to take any photograph without Bible. आपको कोई भी फोटो बिना बाइबल के नहीं लेना है। Okay? How is it that you're praying and that's a candid moment? और ऐसा कैसा हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो और वो एक कैंडिड मोमेंट। How is it that you're praying and you're looking so clean? और ऐसा कैसा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो और आप बहुत ही साफ सुथरे दिख रहे हो। And you are, and you say that's candid. और आप कहते हो कि वो कैंडिड है। Oh, you're not getting it. Okay. But God, but during the time of Cain, he didn't have to play around. There was no one with the lens.
क्योंकि कैन के वक्त उसे खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे कोई लेंस लेके नहीं घूम There रहा was था। only one lens, and that was God. एक ही लेंस था और वो परमेश्वर खुद थे। And God saw him, and God said, "Okay, you look angry और- and you look dejected. और परमेश्वर ने जब उसे देखा, परमेश्वर ने कहा तू क्रोधित दिख रहा है और तू बहुत उदास दिखता है। So let me ask you, what is the problem?" तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ कि तेरी समस्या क्या So है। Cain, when I ask you, I'm not telling you you're bad. I'm just asking you so that I want to help you. और जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बुरे हो, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। Can I tell you one thing? Help God to help you. क्या मैं आपसे कहूँ कि परमेश्वर की मदद करे कि परमेश्वर आपकी मदद करे? Okay? Help God to help you. परमेश्वर की मदद करे कि परमेश्वर आपकी मदद करे? Are you with me? Tell him, Lord, I need help. और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे मदद की जरूरत है। This is the area I need your help, Lord. और ये एक ऐसा क्षेत्र है परमेश्वर जहां मुझे आपके मदद की जरूरत है। Before Cain could say anything, God told him, why are you upset? और इससे पहले कैन कुछ कहे, परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्यों उदास है? You know, God asks, why are you angry? The Lord asked Cain. और परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तू क्यों क्रोधित हुआ? Turn to your neighbor and say, why are you angry? अपने पड़ोसी से देखकर कहे कि तुम क्रोधित क्यों हो? Okay. Tell them, why am I angry? या उनसे कहे कि मैं क्यों क्रोधित हूँ? Okay, let's be little nice with them. Okay? It says, God asked Cain, why are you angry? और इसमें लिखा है कि तब यहोवा ने कैन से पूछा कि तू क्यों क्रोधित है? You know, the Bible says the Lord disciplines those, or the Lord corrects those whom he loves. और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन्हीं को छड़ी करते हैं जिनसे वो प्रेम करते So हैं। when a correction comes, it is not to put you down, it is to lift you up. क्योंकि जब छड़ी आपके जीवन में आता है वो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऊपर I said उठाने when के the correction comes, it is not to put you down, but it is to lift you up. लिए। मैंने कहा जब सुधार आपके जीवन में आता है वो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए Not to होता put है। you down, but to lift you up and to qualify you to do greater things. आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऊंचे उठाकर आपको महान कार्य करने के लिए तैयार To करता do है। greater things. कि आप बड़े काम कर To सको, do things in excellence. कि आप चीजों को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से कर सको। See, our God, okay, is excellent in everything he does. क्योंकि हमारे परमेश्वर जो भी चीज करते वो उसमें सबसे उत्कृष्ट है। So anything that goes from us to him has to be excellent. तो जो भी चीज हमारे से उनके पास जाता है वो उत्कृष्ट होना चाहिए। You don't have to give more than someone else, आपको किसी और से ज्यादा नहीं देना, because your more could be someone else's minimum. क्योंकि आपका ज्यादा शायद किसी और का कम हो सकता है। Okay, your maximum could be someone's minimum. आपका जो सबसे ज्यादा है वो किसी का सबसे कम हो सकता है। So you don't fight your brothers. तो आपको आपके भाइयों से लड़ना नहीं You है। don't compete your brothers, आपको अपने भाइयों के साथ तुलना नहीं करना but है। you compete yourself, आप अपने आप के साथ तुलना करें and you do it better than the last Sunday. और आप पिछले रविवार से बेहतर करें। You know, the moment we kill offense, क्योंकि जिस क्षण हम नाराजगी को खत्म करते हैं, we break the spinal cord of the enemy. हम शत्रु के रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं। Because offense will lead us क्योंकि जो नाराजगी है वो हमें लेकर जाता है to greater sin. एक बड़े महापाप की तरफ। Offense will lead us. See, anyone takes offense. Do you think that the government will put you behind the bars? और जो कोई नाराज होता है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपको जेल में डाल देगी उसके लिए? Just because you're offended, do you think that they're going to put you in the jail? सिर्फ आप नाराज हो गए तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको जेल में डाल But देंगे? with that offense, when you entertain that offense, when you feed that offense, and when that offense turns into aggression, and when someone ends up killing someone, that's when the person is put behind the bars. और जब उस नाराजगी को अंदर पाला जाता है और उसे बढ़ावा दिया जाता है और उस बढ़ावे की वजह से जब कोई किसी की हत्या कर देता है, उस वक्त वो जरूर जेल में So जाता can है। I tell you, killing, I'm not saying killing is okay, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हत्या करना ठीक बात है। if killing is big,
अगर हत्या करना बड़ी बात है, then offense is more bigger. तो जो नाराजगी है वो उससे बड़ा है। Because killing didn't give birth to offense. Offense gave birth to killing. क्योंकि हत्या करना नाराजगी को जन्म नहीं देता, बल्कि नाराजगी हत्या करने को जन्म So देता the है। greater sin is offense. तो जो सबसे महापाप है वो नाराजगी है। So the greater sin is not what your hands do. तो जो महापाप है वो ये नहीं है कि जो आपका हाथ कर रहा है, The greater sin happens inside. क्योंकि जो सबसे बड़ा पाप है वो अंदर होता है। Anything that manifests, जो भी चीज प्रकट होता है it starts from here. वो यहाँ से शुरू होता है, It starts from here. वो यहाँ से शुरू होता है। Anything that you see, जो भी चीज आप देखते हैं, that's how God also did. और ऐसा ही परमेश्वर ने भी किया। That is the way how God functions. और इसी तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। You know, God didn't say, okay, God didn't just, without saying or without thinking, God didn't just picked up the mud and formed a man out of it. God said, let us make. God spoke. The moment God decided, the moment when it came in his heart, that's when Adam was created. और परमेश्वर ने बिना सोचे समझे ऐसे ही नहीं मिट्टी में हाथ लेके बना दिया, लेकिन जिस क्षण परमेश्वर ने अपने आप से कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, और उस क्षण जब उन्होंने विचार किया और योजना बनाया, तब उन्होंने उस मिट्टी से आदम को बनाया। Are you with me? You're not in the house because you just landed in that house. You went in that house because you thought of that house. आप किसी घर में इसलिए नहीं हो कि बस आप वहां पर जाकर उतर गए, क्योंकि उससे पहले आपने विचार किया, तब आज आप उस घर में हो। You didn't marry someone. You decided to get married to this person. आपने यूं ही किसी से विवाह नहीं कर लिया, उससे पहले आपने निर्णय लिया कि आपको विवाह करना है उससे। Monday morning when you go to your office, you don't just walk in. You had decided to go. You know, the job that you're doing, it didn't just come to you. You have decided it. You thought about it. और जो सोमवार की सुबह आप नौकरी पे जाते हो, तो आप बस ऐसे ही नहीं चले जाते, बल्कि आपने निर्णय लिया होता है, आपने उस व्यवसाय को, उस ऑफिस को चुना होता है, तब आप वहां जाते हो। Is it helping us? Does this make sense? We didn't just come in the house. We thought when we got up in the morning, we thought of coming. हम बस ऐसे ही घर में नहीं आ गए परमेश्वर के। जब सुबह हम उठे तो हमने विचार किया, और उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं। In the same way, even the sin happens in that way. और इसी तरीके से पाप भी होता है। Even sin happens in the same way. और पाप भी इसी तरीके से होता है। It doesn't just happen. वो बस यूं ही नहीं हो जाता। There is a place where it starts, एक स्थान होता है जहां से उसकी शुरुआत होती है, which is not seen by anyone जो किसी द्वारा or by everyone. जो किसी के भी द्वारा या हर किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। But what man cannot see, God sees. लेकिन जो मनुष्य नहीं देख सकता, परमेश्वर उसे देखते हैं। So God saw that. और परमेश्वर ने उसे देखा। God knew Cain will kill Abel. और परमेश्वर जानते थे कि कैन हाबिल को मार डालेगा। Okay, God knew that. परमेश्वर इस बात को जानते थे। But God didn't tell Abel, you have to run for your life. God said, I will speak to Cain. और परमेश्वर ने हाबिल से नहीं कहा कि हाबिल तू अपना प्राण बचाकर भाग, बल्कि परमेश्वर ने सीधे कैन से बात किया। Okay, and that was also a lesson to Abel. और वो एक सीख था हाबिल के लिए Don't be too nice. कि बहुत ज्यादा अच्छा न बने, Be wise. बल्कि बुद्धिमान बने। When you know that friend is going to push you, क्योंकि जब आप जानते हो कि आपका दोस्त आपको धक्का देने वाला है, come on, why do you want to walk with him? तो उसके साथ आपको क्यों चलना है? When you know walking with him and spending time with him, there is no God coming out. क्योंकि जब आप जानते हो कि उसके साथ चलने में और उसके साथ समय बिताने में परमेश्वर आपके पास नहीं आने वाले। See, walking with some people is walking in your tomb early. देखिए, कुछ लोगों के साथ चलने का अर्थ होता है कि आप आपकी कब्र के पास जल्दी चलना शुरू But करते हैं। walking with some people is coming out of your tomb. लेकिन कुछ लोगों के साथ चलने का अर्थ होता है कि आप आपके कब्र से बाहर आते हो। So this morning the choice is ours. तो इस सुबह विकल्प हमारा है। Do we want to walk in the tomb or do we want to walk out of the tomb? क्या हम कब्र के अंदर चलना चाहते हैं या कब्र से बाहर आना चाहते हैं? Okay, this God speaks.
क्योंकि ये जो परमेश्वर है ये बातें करते I हैं। said this God speaks. मैंने कहा ये परमेश्वर बातें करते हैं And this God sees what is happening in the heart. और ये परमेश्वर देखते हैं कि आपके हृदय में क्या हो रहा है। Okay, so looking at Cain, God says, why are you upset? Why are you downcast? और कैन की तरफ देखकर परमेश्वर ने से कहा कि तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाया Why हुआ do है? you look so dejected? तू इतना तेरे मुंह पे इतना उदासी क्यों छाया हुआ Why है? are you so upset? तू इतना नाराज क्यों है? You know, Cain also gave an offering. कैन ने भी तो आकर ऑफरिंग दिया। Make sense? We give offering, but there is offense. हम भेंट देते तो हैं लेकिन अंदर नाराजगी है। Okay? For the offering to be accepted by God, we have to first kill the offense. अगर आप चाहते हो कि आपकी भेंट परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया जाए, उसके लिए आपको नाराजगी को पहले खत्म करना है। See, it was not only because Cain gave vegetables to God. और ये इसलिए नहीं था कि कैन ने भाजी पाला लेकर गया। It was not just because Cain gave vegetables, like vegetables are also healthy. और ऐसा नहीं था कि कैन ने भाजी पाला दिया क्योंकि भाजी पाला अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। But maybe that's not God's taste. शायद वो परमेश्वर का स्वाद नहीं हो सकता। Come on. Just helping. Okay. So having meat is not evil. तो देखिए मांस खाना मतलब कोई शैतानी काम नहीं है। God accepted meat. परमेश्वर ने मांस को ग्रहण किया। You know, but the beauty is in all this you don't see God speaking to Abel. लेकिन जो सुंदर बात है इन सारी चीजों में आप देखोगे कि परमेश्वर ने हाबिल से कहीं पे भी बात नहीं We की। don't see God speaking to Abel, but we see God speaking to Cain. हम कहीं भी परमेश्वर को हाबिल से बात करते हुए नहीं देख रहे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर कैन से बात कर रहे I हैं। think Cain should have said, God, I know I messed up here, but I thank you that even if I'm not accepted or my offering is still not accepted, but I can still hear your voice. और मैं सोचता हूँ कि अगर कैन कहता कि परमेश्वर भले ही मेरी भेंट ग्रहण नहीं भी की गई हो, मैं फिर भी आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। So इसके लिए मैं next धन्यवाद Sunday, I'm going to give my best, Lord. तो अब अगले रविवार मैं अपना बेहतरीन आपको दूंगा परमेश्वर। And not just that, during the week, I'm going to call up Abel and ask him, what did you do? और उतना ही नहीं बल्कि इस पूरे हफ्ते में मैं एबेल से बात करके कहूंगा कि तूने क्या दिया, ऐसा क्या किया। Because the Bible says, humble yourself before the Lord. क्योंकि वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाओ। But can you see, Lord? क्या आप परमेश्वर को देख सकते हो? So if you don't see God, humble yourself before the one whom the Lord has accepted. तो अगर आप परमेश्वर को नहीं देख सकते तो जिसे परमेश्वर ने स्वीकारा है उसके सामने आप नम्र बने। Because you know, when you humble yourself before the one whom the Lord has accepted, it is as equal as, you know, doing it before the Lord. क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति के सामने नम्र बनते हैं जिसे परमेश्वर ने स्वीकारा हो तो वो उसके बराबर है, परमेश्वर के सामने नम्र बनने के बराबर है। So humble yourself before the Lord तो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाएं so that He will lift you up in honor. कि वो आपको आदर के साथ ऊंचा उठाए। That's what the Bible says, right? आमीन। I'm not making up stuff. That's what the Bible says. मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वचन ऐसा कहता है। Okay, so now Cain missed it though. और अब कैन ने इस बात को खो दिया। Okay, then the Lord says, you will be accepted. और तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा If you do what is right. और यदि तू जो सही है उसे करे तो। The only thing that you need to do is you and I, we need to focus on how to do things right. एक ही चीज है जिस पे आपको और मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना है कि हम किस तरीके से चीजों को सही तरीके से करें। See, we think of doing things big. हम बहुत बड़ी चीज करने का सोचते हैं। But God doesn't say do it big. God says do it right. परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं कि बड़े चीजों को करो, परमेश्वर कहते हैं कि सही चीजों को करो। You know, I'm not stopping anyone from doing big things, but the Lord is saying do it right. मैं किसी को भी बड़े चीज करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि उसे सही तरीके से करो। Do it in the right manner. उसे सही तरीके से करो। In the manner which is accepted by God. और उस तरीके से जो परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया जाए। Okay, let's pay attention to verse 4 once again. चौथा वचन Verse 4 and 5.
चौथा और पांचवा वचन एक और बार पढ़ेंगे। It says, Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift. और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। So it is not your offering that has been accepted by the Lord first. तो सबसे पहली चीज ये सिर्फ आपकी भेंट नहीं है जो परमेश्वर स्वीकारते हैं। It's not just the altar that the Lord accepts. ये सिर्फ वेदी नहीं है जो परमेश्वर ग्रहण करते हैं। The Lord first accepts those hands सबसे पहले परमेश्वर उन हाथों को ग्रहण करते who हैं built that altar. जिसने उस वेदी को बनाया। And then the Lord accepts the altar. उसके बाद परमेश्वर उस वेदी को ग्रहण करते हैं। Are we learning something? So the Bible says the Lord accepted Abel. और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया। Come on, can it be said about us? Can this be said about us? क्या ऐसा हमारे बारे में भी कहा जाए? Come on, when you come ahead and build an offering before the Lord, can the Lord say that, okay, I have accepted this person and because of that, I am accepting the seed? क्योंकि जब हम आगे आकर वेदी हम चढ़ाते हैं तब परमेश्वर कहे कि मैंने इस व्यक्ति को ग्रहण किया है और क्योंकि मैंने इसे ग्रहण किया है तो मैं इसकी वेदी को भी ग्रहण करता हूँ। I feel this is the right time to build altar. मुझे लगता है कि ये सही समय है वेदी Because we बनाने do it का। for the Lord. क्योंकि ये हम परमेश्वर के लिए करते हैं। We do it for the Lord. क्योंकि ये हम परमेश्वर के लिए करते हैं। And that's what moves the heart of God. और ये ही चीज परमेश्वर के हृदय को हिला देती है। This morning I'm here to tell you, and I'm not ashamed about it, God moves with altars. इस सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा इस बात को कि परमेश्वर आपके वेदी के द्वारा कार्य करते हैं। Let me say this again. God moves with altars. परमेश्वर आपके वेदी के द्वारा चलते फिरते हैं। The giving is the language of God. क्योंकि जो देना है वो परमेश्वर की भाषा है। I said giving is the language of God. मैंने कहा देना जो है वो परमेश्वर की भाषा Turn to your neighbor है। and say, giving is the language of God. अपने पड़ोसी से देखकर कहे कि देना जो है वो परमेश्वर की भाषा है। Giving is the language of God. क्योंकि जो देना है वो परमेश्वर की भाषा है। What does your Bible say in John 3:16? आपका पवित्र शास्त्र क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में? What does it say? उसमें क्या कहा है? For God so loved the world that he gave his only begotten Okay, so he's not just saying, oh, I love you, my people. और उसने ऐसा नहीं कहा कहीं पे भी कि मैं मेरे बच्चों से प्रेम करता हूँ। No, he didn't just say from above, okay, I love you guys. और उन्होंने ऊपर से सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। देख लो अभी क्या करना तुम लोगों को। पहले ही मैस हो गया सब। No, he didn't do that. He said, I love you guys and now I'm giving. और उसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अब मैं तुम्हें देता हूँ। Because giving is the language of God. क्योंकि जो देना है वो परमेश्वर की भाषा है। The Bible says Abraham was a friend of God. और वचन में ऐसा लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। Why was he friend of God? वो क्यों परमेश्वर का मित्र Because था? he was ready to give his begotten son. क्योंकि वो अपना इकलौता पुत्र देने के लिए तैयार हो गया। So you become friends with those who have the same characteristics. तो आप उन्हीं के साथ मित्र बन सकते हो जिसका स्वभाव एक सा है। You're not getting this. You become friends with those with whom you have the same characteristics. तुम उन्हीं के साथ मित्र बन सकते हो जिसका बर्ताव और स्वभाव आपके जैसा है। So God is like, okay, I am also willing to give my son, and this fellow is also not holding himself back, and he's also willing to give his son to me. Now we can become friends, Abraham. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी अपना पुत्र देने के लिए तैयार हूँ और ये व्यक्ति भी अपना इकलौता पुत्र देने के लिए तैयार हूँ। मतलब हम दोनों एक से हैं और अब मैं इसके साथ मित्र बन सकता हूँ। Can I tell you, Abraham was a king. क्या मैं आपसे कहूँ कि अब्राहम एक राजा था? We limit people of God only to prophetic. हम परमेश्वर के लोगों को सिर्फ नबूवत में लेकर सीमित कर देते हैं। But we read in the word there were kings who belonged to the Lord. लेकिन हमने वचन में पढ़ते हैं कि
क्योंकि कुछ राजाएं हैं जो परमेश्वर के हैं। The Bible talks about kings and priests. और परमेश्वर राजाओं और याजकों के बारे में बात But करते हैं। conveniently we've picked up only priests. लेकिन हमने सिर्फ याजकों को सिर्फ उठा लिया। But God doesn't say only priests. God says kings. To become a priest, you first become a king. और परमेश्वर ने सिर्फ याजक नहीं, परमेश्वर ने कहा कि याजक बनने के लिए पहले तुम्हें राजा बनना है। Walking with Jesus and you're not king, not possible. और परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलने में अगर आप राजा नहीं है तो संभव नहीं है। Come on. Some of us, we are just worried for the month end. हम में से कुछ लोग महीने के आखिर को लेकर चिंतित But हैं। this morning, let me tell you, that should not worry you. इस सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो आपकी चिंता का कारण न बने। Months will end and you will not even get to know. और महीने खत्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। You are like, Lord, this money is not getting over. आप कहोगे कि परमेश्वर पैसा खत्म नहीं हो Because रहा। God says, yes, because you are a king. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम राजा हो। Because you've understood the language of giving. क्योंकि तुमने देने की भाषा को समझा है। See, those who save, they will only save. क्योंकि वे जो बचाते हैं वे सिर्फ बचाएंगे, But those who give, it will multiply. लेकिन वे जो देते हैं उनके पास बहुगुणित होगा। Okay? See, God is not a bank. देखिए परमेश्वर कोई बैंक नहीं है, Okay? But God is a designer of wealth. लेकिन परमेश्वर धन को बनाने वाले डिजाइनर है। If God wants certain things to stop, it will stop. अगर परमेश्वर चाहे कुछ चीजें बंद हो जाए तो वो बंद हो जाएगी। We thought governments took decisions. हमें लगता है कि सरकार निर्णय लेता है। You know, the Bible says the earth, the heaven is his throne and the earth is his footstool. क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। So God is not interested in my money. तो परमेश्वर मेरे पैसों में दिलचस्पी नहीं रखते। Okay? So God was making it very clear to Cain. God is not saying, Cain, I'm not interested in the crops. और परमेश्वर उससे बहुत ही साफ तरीके से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कि तेरे उपज पे मैं It's not that I'm not interested in the, I'm not interested in the crops. ऐसा नहीं है कि मुझे तेरी उपज में दिलचस्पी नहीं है। I can accept it. मैं उसे ग्रहण कर सकता हूँ। But this time, Cain, you missed it. You didn't do it in the right manner. इस समय तूने खो दिया, तूने उसे सही तरीके से नहीं किया। Maybe you just hurried. शायद तूने घाई गड़बड़ी में कुछ किया हो। Maybe you were just rushing. You were doing something and you're like, okay, it's time to give offering, and you just picked up whatever came in your hands and you gave it. शायद तू घाई गड़बड़ी में रहा होगा, तूने देखा रहेगा कि समय हो गया, बस तेरे हाथ में जो लगा तू वो लेकर आ गया होगा। But Abel, he was preparing the offering since Saturday. लेकिन हाबिल जो है वो शनिवार से अपना तैयारी कर रहा He था। was working towards it. He presented it in the right manner. वो उसके प्रति काम कर रहा था और उसने सही तरीके से उसे उपस्थित किया। Are you with me? And God is like, okay, this person is paying attention to the details. और परमेश्वर देखते हैं कि ये व्यक्ति हर एक चीजों पर गौर करता है। Can I tell you, you and I, we cannot buy men of God. क्या मैं आपसे कहूँ कि आप और मैं परमेश्वर के दास को खरीद नहीं सकते? I'm talking about real men of God, okay? मैं परमेश्वर के दासों के बारे में बात कर रहा हूँ। You know, some pastors are there, they are under. You know, so all they want to do is just please. और कुछ पासवान ऐसे होते हैं बस उन्हें लोगों को खुश करना रहता है। I'm not talking pastors in this city, I'm talking somewhere else. You know, and they are constantly under. You know, the people will now tell them what to do, when to get up, when to sit. और कुछ पासवान उनके अधीन रहते हैं कि लोग कहेंगे कब क्या करना है। Some are birthday pastors. कुछ लोग बर्थडे वाले पास्टर्स होते हैं, They are only for the birthdays. सिर्फ बर्थडे पे रहेंगे। You know, some are pastors who will pray for lunch. और कुछ पास्टर रहेंगे जो सिर्फ भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे। You know, because the church has categorized. क्योंकि जो कलीसिया है उसने कैटेगराइज This करके is रखा more famous guy. Let him do the big deal. है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है तो इसे बड़े काम करने दें। This is a smaller guy. Let him pray over the food. और ये थोड़ा छोटा व्यक्ति है तो इसे भोजन पे प्रार्थना करने देते हैं। You know, but when God does things, He doesn't categorize. लेकिन जब परमेश्वर चीजों को करते हैं तब वो कैटेगराइज नहीं करते हैं। You know, God knows how to pick up someone and how to lift that person up. क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कैसे उस व्यक्ति को चुने और उसे ऊंचा उठाए। Are you with me?
So I came this morning to remind us the power of giving. और इस सुबह मैं आया हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि देने की सामर्थ्य क्या होती है, Giving unlocks certain doors for us. क्योंकि जो देना है वो हमारे लिए कई दरवाजों को खोल देता But है, that giving has to be in the right manner. लेकिन वो जो देना है वो सही तरीके से होना चाहिए. You know, to thank God, it's okay you don't say thank you. तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आपको परमेश्वर धन्यवाद हो, You don't have to say thank you to God. आपको परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहना है, You know, because the church is convinced to believe that okay, we just have to say thank you. क्योंकि कलीसिया कन्विंस हो गई इस बात को विश्वास करने में कि आपको धन्यवाद कहना है. Thank you is just a cover up. देखिए धन्यवाद करना ये जस्ट एक कवर अप है. You know, when Abel came and stood before the Lord, और क्योंकि जब हाबिल आकर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, he didn't say thank you. उसने धन्यवाद नहीं कहा, He just gave the best offering. उसने अपना सबसे बेहतर भेंट चढ़ाया. Yours and my lifestyle, आपका और मेरा जीवन शैली if we do it in the right way, अगर हम उसे सही तरीके से करें we will have to speak less and shout less. तो हमें कम बात करना और कम चिल्लाना है. I said, then we will have to, if we do things, if we do life in the right manner, अगर हम अपना जीवन सही तरीके से जिए we don't have to be loud about it. तो हमें उस बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं. We don't have to be loud about it. हमें उस चीज के बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं. You know, this morning I'm telling you, money will not, you know, surprise us. इस सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पैसा हमें चौंकाएगा नहीं. Right now, you know, while we all are here, I know that, you know, before this year ends, God will take us to a new location. और मैं जानता हूँ कि इस साल खत्म होने से पहले परमेश्वर हमें एक नए स्थान में लेकर जाएंगे. And I believe whatever, you know, the amount is required, God will provide. और जो भी पैसा लगेगा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जरूर देंगे उसे. Because with God, all things are possible. क्योंकि परमेश्वर के साथ हर एक चीज संभव है. Come on, God, if God can take care of our house, can't He take care of His house? अगर परमेश्वर हमारे घर का ख्याल रख सकते हैं तो क्या वो अपने घर का ख्याल नहीं रख सकते? Come on, some of our jobs will change so that we'll get higher salaries and we can take care of certain आप में responsibilities. से कुछ लोगों की नौकरियां बदल जाएगी कि हमें ज्यादा तनख्वाह मिले और हम ज्यादा परमेश्वर के घर के लिए कर सकें. See, let me tell you, we started this church from a small house. तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने ये जो कलीसिया एक छोटे घर से शुरुआत की थी. And that time there was no rent. और उस वक्त कोई भाड़ा नहीं था. And because there was no rent, we didn't have much offerings. और कोई रेंट नहीं था तो हमारे पास ज्यादा ऑफरिंग भी नहीं था. Come on, I'm just testifying certain things to you. मैं कुछ गवाही दे रहा हूँ कुछ चीजों की. Okay, but when we decided to move out because we wanted to go out and we decided some of us, some guys are still with us. और जब हमने निर्णय लिया कि हम इससे बाहर निकलेंगे क्योंकि उसमें से कुछ लोग अभी भी हमारे साथ हैं. And we stepped out in a room, in a small space because we wanted to do church in an organized manner. और हमने एक छोटा सा सेटअप बनाया क्योंकि हम चर्च को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते थे. Okay, and that time the rent was like $1,500. और उस समय 1500 भाड़ा था. Too much for us that time वो टाइम पे बहुत ज्यादा था वो, because we were only few of us. क्योंकि हम लोग बहुत ही थोड़े लोग थे. But we started seeing the goodness of God. लेकिन हमने परमेश्वर की भलाई को देखना शुरू किया. You know that 1 month rent would be, you know, our one Sunday offering would be more than that. और वो जो एक महीने का भाड़ा था हमारे एक रविवार का जो ऑफरिंग है वो उससे ज्यादा हुआ So you होता can था. imagine. तो आप सोच सकते हो. So why did the provision come? तो ये जो प्रोविजन है ये क्यों आया? Because someone decided to step out. क्योंकि किसी ने निर्णय लिया उससे बाहर निकलने का. See, things will not come to you unless and until you don't walk to it. चीजें आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे. Come on, I'm challenging some of you. मैं आप में से कुछ लोगों को चुनौती देता हूँ. This week, go into that car showroom. इस हफ्ते उस कार के शोरूम में जाएं. Lay your hand, they're not going to charge you for it. अपने हाथ उस पर रखें, उसके लिए वो आपसे And चार्ज claim करेंगे. that. और उससे आप घोषणा करें. This week, if you think your finance don't look that great, don't care about that part. इस हफ्ते अगर आपको लगता हो कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसका आप चिंता न करें. Go and visit some real estate offices. जाइए और कुछ रियल एस्टेट ऑफिस में विजिट करें. And just tell them, I just want to know what's here. और मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या है यहाँ पर. See, God, because you are doing it for the goodness of God, for the glory of God. क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं.
See, the only thing is, God, if I get this car, I'm gonna use it for your glory. और हम कहते हैं कि परमेश्वर यदि मुझे ये कार मिलेगा तो मैं इसे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। If you give me this car, अगर आप मुझे ये कार दोगे, I will use this to drive the man of God. मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कि मैं परमेश्वर के दास के लिए इसका इस्तेमाल करूं। Lord, I don't want 2 BHK. मुझे 2 BHK नहीं चाहिए। बहुत बड़ा है 2 BHK. I don't want. God, I want 3 BHK so that I can host the man of God also. परमेश्वर मुझे 3 BHK घर चाहिए कि मैं परमेश्वर के दास को मेरे घर में रख सकूं। Lord, increase my salary so that I can tithe more. परमेश्वर मेरी तनख्वाह को बढ़ाइए कि मैं ज्यादा दशमांश दे सकूं। See, that is the whole reason why God blessed Abraham. और ये ही कारण है कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। I'm here to remind you the power of giving. मैं यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए हूँ कि देने की सामर्थ्य क्या There is है। power in giving. क्योंकि देने में बहुत बड़ा सामर्थ्य You know, है। when sometimes when you're not confident, but when you give, your seed starts speaking now. क्योंकि कई बार आप दृढ़ नहीं रहते हो, लेकिन जब आप देते हो तब आपका बीज बोलने लगता है। Okay, because that is how God moves. क्योंकि इसी तरीके से परमेश्वर कार्य करते हैं। This God is beyond verbal thank yous. क्योंकि ये परमेश्वर हमारे कहने वाले धन्यवाद से परे है। This God is interested in those people whom He can turn into kings. और ये परमेश्वर ऐसे लोगों में दिलचस्पी रखते हैं जिन्हें वो राजा में बदल दे। I want to remind you something our prophet said, that the church is not weak. मैं कुछ चीज को याद दिलाना चाहता हूँ जो हमारे प्रॉफिट ने कहा कि कलीसिया कमजोर नहीं है। Amen. Come on, why should church be in the hiding? तो कलीसिया छुपा हुआ क्यों होना We should चाहिए? dream for a church which is in the center of the city. हम ऐसे कलीसिया के लिए हमें स्वप्न देखना है जो शहर के बीचों बीच हो। We should dream for a church where the name of the church is on the building. और हमें ऐसा कलीसिया चाहिए जहाँ पर पूरे बिल्डिंग के ऊपर कलीसिया का नाम हो। And boldly we walk into the house of God. और पूरे दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर के घर में चल कर Come on, आएंगे। if we serve the living God, we deserve the best. अगर हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें बेहतर मिलना चाहिए। Come on, it is time for everyone to come together and call upon the name of the Lord. ये समय है कि हर कोई मिलकर एक साथ आकर परमेश्वर के नाम को पुकारे। There is power in giving. क्योंकि देने में सामर्थ्य है। There is power in giving. क्योंकि देने में सामर्थ्य है। Some of you just stepped out and you just saw some people giving, so you decided to give now. हम आप में से कुछ लोगों ने जस्ट देखा कि लोग दे रहे हैं तो अब आपने निर्णय लिया देने का। But just by that act, the Lord has accelerated few things for you. लेकिन उसके वजह से परमेश्वर ने कुछ चीजों को आपके जीवन में ऊंचा किया है। You have to believe, because God is not a debtor. आपको विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है। Whatever you give to the Lord will come back. जो भी चीज आप परमेश्वर को देते हो वो आपके पास वापस आएगा। But don't give for it to come back. लेकिन वो वापस आने के लिए ना दे। It's not a scheme. ये कोई स्कीम नहीं है, It's called faith. इसे विश्वास कहते हैं। I said it's not a scheme. मैंने कहा ये कोई स्कीम नहीं है, It's called faith. इसे विश्वास कहते हैं। What took you to take out everything from your wallet and give it to the Lord? क्या चीज है जिसने आपको आपके पर्स में से सारी चीजें निकाल कर परमेश्वर को देने लगाया? Because you know, as long as you are under the shadow of the Almighty, क्योंकि आप जानते हो जब तक आप उस परम प्रधान की छाया में हो, even if you want, भले आपको जरूरत होगी, even if you want, भले ही आपको जरूरत no, होगी, even if you think, okay, my wallet is empty, it will never be empty. आपको भले लगेगा कि मेरे पर्स खाली है, वो कभी खाली होगा ही नहीं। Even if your wallet was empty, भले ही अगर आपका पर्स खाली रहा होगा, are you still not here? क्या आप तब भी यहाँ नहीं हो? And are you still not standing? क्या आप तब भी खड़े नहीं हो? Money should not bother the child of God. पैसा परमेश्वर के बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। You and I, we are called to do greater things. आप और मुझे बड़े काम करने के लिए बुलाया गया है। In this house, let me remind you, everyone is qualified to become the minister before the Lord and before the people of God. और मैं कहना चाहूंगा कि इस घर में जितने भी लोग हैं, हर किसी के जीवन में बुलाहट है कि परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। It's not one man doing show.
ये कोई एक व्यक्ति करने वाला काम नहीं है। If the man of God can do, you can do it too. अगर परमेश्वर के दास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। I'm teaching you something that I have learned. मैं वो चीज सिखा रहा हूँ आपको जो मैंने सीखा I'm है। teaching you something that has been taught to me. मैं कुछ ऐसी चीज आपको सिखा रहा हूँ जो मुझे सिखाया गया है। If your God didn't work, try my God. अगर आपका परमेश्वर कार्य नहीं किया है तो आप मेरे परमेश्वर को आजमा कर देखें। I'm telling you, I strongly believe the Lord is going to bless some of us financially. और मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम में से कुछ लोगों को आर्थिक तौर पर बढ़ाने वाले हैं। You will see shift in your finances. आप आपके आर्थिक इसमें बदलाव को देखोगे। I know I carry that grace. मैं जानता हूँ कि मैं उस अनुग्रह को लिए चलता Because हूँ। I know where I stand and under which shadow I stand. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किसकी छाया में खड़ा हूँ। I know who I am and I know who my fathers are. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे पिताएं कौन हैं। And I know who our God is. और मैं जानता हूँ कि मेरे परमेश्वर कौन है। And if you are in the house, अगर आप इस घर में हो, He's your God too. वो आपका भी परमेश्वर है। So you have to believe for it. इसके लिए आपको विश्वास करना है। Certain doors will open. कुछ दरवाजे जरूर खुलेंगे। Right now, if this is something I do, एक कुछ चीज जो मैं करता हूँ, just go in your bank app, check the balance and just speak to it. अपना बैंक ऐप में जाकर बैलेंस को चेक करिए और उसके ऊपर बोलिए। You have to believe for it. आपको विश्वास करना You है। just declare. आपको बस घोषणा करना Just है। tell, you have to rise up. आपको खड़े रहना है। You have to shoot. आपको शूट करना है। वाओ! यस! You're not liking this. Okay? Because we serve a God who's faithful. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो विश्वास योग्य है। Okay? God blessed Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया and made him the father of many descendants. और उन्हें कई कुल का पिता बनाया। But it all started with one Isaac on the altar. लेकिन इसकी शुरुआत एक इसहाक से हुआ जो वेदी पर That रखा one गया। Isaac was as equal as many descendants. क्योंकि वो एक इसहाक कई पीढ़ी के बराबर है। वाव! So when Abraham laid Isaac on the altar, in the eyes of world, that was the reason why Abraham said, servants, you don't come, you stay here. I and the boy will go, because they will not understand. क्योंकि जब अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर लिटाया और ये कारण है कि क्यों अब्राहम ने सेवकों को कहा कि तुम नीचे ही रुको, मैं और मेरा बेटा जाकर उसकी Because आराधना by the करते time हैं। Abraham and Sarah had Isaac, they already crossed their age limit. क्योंकि जब तक अब अब्राहम और सारा के पास इसहाक आया, वे अपनी उम्र की सीमा पार कर चुके थे। But God is best when it comes to say age is just a number. और परमेश्वर इस मामले में बेहतरीन है जब हम कहते हैं कि उम्र तो बस एक संख्या है। Turn to your neighbor and say age is just a number. अपने पड़ोसी से देखकर कहें कि उम्र तो बस एक संख्या You है। are much more qualified to you're qualified to do much more greater things. आप बहुत ही बड़े कार्य करने के लिए रखे गए हो। Okay, so when God asked Abraham that I want you to give your only son to me, और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू अपना इकलौता पुत्र मुझे दे दे, but before that God spoke to Abraham and said, I will make you a father of many descendants. और उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से बातें कर कर कहा था कि मैं तुझे कई पीढ़ियों का पिता बनाऊंगा। And after that he became the father of Isaac. और उसके बाद वो इसहाक का पिता बनता है। So now Abraham is thinking, if he's supposed to have many children now, if he's supposed to become the father of many descendants, it is only through Isaac now. और अब यहाँ पर अब्राहम सोच सकता है कि अगर उसे कई पीढ़ियों का पिता बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक के द्वारा होगा। Because he's thinking biologically it's not, physically it's not going to be possible for Abraham to become the father of many people now. क्योंकि अब अगर शारीरिक तौर पर देखा जाएगा तो अब्राहम के लिए संभव नहीं है कि वो कई पीढ़ियों का पिता बने। So are you understanding? So when Abraham was ready to give Isaac to the Lord, और क्या आप समझते हो कि जब अब्राहम तैयार हो गया इसहाक को परमेश्वर को देने के लिए, he was not just ready to lay the young boy on the altar, वो सिर्फ उस जवान लड़के को वेदी पर रखने के लिए ही नहीं तैयार था, but he got ready to lay the promises that God gave him.
बल्कि वो उस वाचा को भी जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसे भी वो उस वेदी पर रखने के लिए तैयार था। He didn't just lay the son, he laid the prophecy. उसने सिर्फ उस बेटे को वेदी पे नहीं रखा था, बल्कि उसने उस नबूवत को, उस भविष्यवाणी को भी वेदी पे रखा। He didn't just lay one son. He said, God, this is one boy, but I know that you are looking at many descendants now. और उसने सिर्फ एक बेटे को वहां पर नहीं रखा था, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूँ इस वक्त में ये एक बेटा है, लेकिन ये कई पीढ़ी है। But when Abraham laid Isaac on the altar, और जब अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर रखा, he also laid Jacob. उसने याकूब को भी वहां पर रखा। It was not just Isaac. वो सिर्फ इसहाक नहीं था। Are you understanding what I'm saying? There is power in giving. देने में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। God knows it is your last meal, but the lady says, the women says, the widow says, this is my last meal, I will eat it and I will die. But because you ask us, prophet of God, because you ask us, we give it to you. और उस विधवा स्त्री ने कहा कि ये मेरा आखिरी भोजन है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तू परमेश्वर का नबी है और तू मुझसे पूछता मांगता है, ये मैं तुझे देती हूँ। And you know the oil didn't get over. और आप जानते हैं कि उसके तेल कभी खत्म नहीं हुए। God knows how to take care of you. परमेश्वर जानते हैं कि आपका ख्याल कैसे रखना है। But can someone rise up and say, God, I will take care of your business? क्या कोई उठकर खड़ा होकर कहेगा कि परमेश्वर मैं आपके व्यवसाय का ख्याल रखना चाहता हूँ? Come on, Lord, my finances are not my alone, it is yours. क्योंकि मेरा जो आर्थिक स्थिति है वो मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि वो आपका है परमेश्वर। You and I, we need to have a joint account with God. आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जॉइंट अकाउंट रखना है। Come on, this morning sign up for some joint account with God. इस सुबह जॉइंट अकाउंट के लिए साइन अप करें। No lack will have control over it. तो कोई भी कमी आपके ऊपर नहीं आएगी। Come on. No bank can refuse you कोई भी बैंक आपको रिफ्यूज नहीं करेगा। because you have the backup of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का बैकअप है। Come on, we serve a God who is faithful. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो विश्वास योग्य है। I want you to believe this, not with competitive mindset, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर विश्वास करें, ना कि कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ, not with the mindset to pull anyone else down. किसी को नीचे गिराने के विचार से नहीं। But can someone boldly and confidently say, Lord, this house, our house, this house, His nearness will be one of the best houses in Ambernath. क्या हम दृढ़ता से कहें कि परमेश्वर आपका घर His nearness सबसे बेहतर घर होगा पूरे अंबरनाथ में? Come on, can some dream along? क्या कोई लोग कहे? That God, we don't know how it's going to work, but we know it will work. परमेश्वर हम नहीं जानते ये कैसे कार्य होगा, लेकिन मैं जानता हूँ ये जरूर होगा। Because the Bible says, for all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। If you want things to work for you, you have to believe that you are called according to His purpose. अगर आपको चाहिए कि आपके लिए कुछ चीजें काम करें, तो आपको विश्वास करना है कि आप उसकी योजना में बुलाए गए हो।